चलिए हिस्ट्री ऑफ कोर्ट, हाँ, पटना ट्रायल. The Patna case exposed the judicial administration of the company. In fact, the Patna case is an illustration of various defects and weaknesses in the Adalat system in Bengal, Bihar and Orissa. The facts of the case were as given below. ठीक है, जैसे मैंने बोला सबसे बड़ा जो पटना ट्रायल हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि जब प्रीवियसली जब हमने वेरियस कोर्ट्स देखे थे, जब उनका डेवलपमेंट हुआ था तो दे हैड मेनी डिफेक्ट्स. तो सेम पटना ट्रायल उसको कॉन्क्रीट कर देता है कि हाँ दिस वाज वेरी मच ट्रू. ऐसा था. तो पटना का केस एक्सपोज द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. In fact, Patna case is an example illustration of various defects and weaknesses in the अदालत system. तो जैसे आप यहाँ देखिएगा ये वाला पार्ट, तो this makes very much clear. ठीक है. One, Shabak Beg, the person who was from Kabul, soldier working in East India Company, had no son, and so he called his nephew Bahadur Beg from Kabul to live with him. He expressed a desire to adopt. He expressed a desire to adopt Bahadur Beg and to hand over his property to him. So the before he could do so, he died. Okay, तो यो करने से पहले वो मर गया. I should start using pointer तो better रहेगा. Right, guys? So yeah, this one. Thereafter, a struggle between the property Bahadur Shah and Shahbag's widow Nadira Begum started. The Begum claimed entire property on the basis of gift, and so had to be executed in her favor by her late husband. Bahadur Beg claimed the entire property as the adopted son. See, the lectures are going on. Son, the deceased, he filed a suit against Begum in the Patna Provincial Council, which was function as a Diwani court for the time. तो पहले किसने फाइल किया केस? हमारे बहादुर बेग ने फाइल कर दिया केस कि नहीं नहीं सब कुछ है, मुझे मिलना चाहिए. द पटना काउंसिल, द दीवानी कोर्ट रिमिटेड द एंटायर केस टू इस. जैसे उस वक्त फंक्शनिंग कौन करते थे, हेल्प आउट जजेस को कौन करता था? काजीज मुफ्तीज फॉर मुस्लिम्स एंड pandits for Hindus. ऐसा था. The officers, qazis and muftis required them to make an inventory of property of the deceased, to collect the property and seal it, and accordingly ascertain facts and legal justice to transmit the council a written report. तो काउंसिल ने क्या किया कि काजी मुफ्ती को बोला जाओ वहाँ पे सब कुछ प्रॉपरली मार्क करो, देखो कितनी प्रॉपर्टी है क्या है, उसको सील करो जब तक केस चल रहा है, और एक प्रॉपर रिपोर्ट हमें दे दो. अंडर द रेगुलेशंस एंड प्रिवेलिंग, द लॉ ऑफिसर्स वर नाइदर टू परफॉर्म एनी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस. देखिए जैसे मैंने बोला कि उनको क्या काम था, जो काम उनको बोलते थे वो लोग करते थे, और उनको कोई पावर नहीं दी गई थी. अंडर द रेगुलेशंस देन प्रिवेलिंग, द लॉ ऑफिसर्स वर नाइदर टू परफॉर्म एनी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, nor they were so nor were they to concern themselves with the deciding the question of the fact. Their only function was to expound the law applicable to the facts of the case. जैसा बोला गया वैसा करना था. नॉर्मली जैसे जिसने गाइड कर दिया दे, अपना दिमाग में कुछ नहीं लगाना था. तो इसके लिए तो ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी. Then the law officers locked and sealed the house of the deceased. The widow of the deceased was insulted and humiliated to such an extent that she left the house and took refuge in mosques. She started living in mosques, मस्जिद में जाके रहने लगी. दे रिजेक्टेड हर क्लेम होल्डिंग द गिफ्ट्स दैट वेर फॉर्ज्ड. मैं जैसे बोला कि जो गिफ्ट डीड उसने बताया कि मुझे गिफ्ट है ये मेरे पति के, जिस तरह आप मानिएगा, तो दे सेड दैट इट इज फॉर्ज्ड, मतलब नकली था. एज मुस्लिम लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज एडॉप्शन, बहादुर बेग क्लेम्स वाज आल्सो रिजेक्टेड. द डिसीज प्रॉपर्टी वाज thus to be divided according to the Muslim law of intestate succession. बट इट वाज बेसिकली डिवाइडेड. ऐसा था कि 3 पार्ट बच्चे को दे दिया था, एक पार्ट वाइफ को दिया गया था. The widow approached to against the widow approached the Supreme Court and filed an action against Bahadur Beg and the Qazis and Muftis for assault, breaking and entering her house and taking away her property, and claimed damages amounting to rupees 6 lakhs. ठीक है, these were the charges laid down by the widow wife. Bahadur Beg and Qazis were arrested and brought from Patna to Calcutta and were lodged in prison. उनको बुलाया वहां से, उनको जेल में डाल दिया. ठीक है. Then the issues, the legal issues raised in trial, which started in November 1778, were स्टार्ट 1776 से हुआ था, बट सुप्रीम कोर्ट का लीगल इशू थोड़ा अलग इसमें क्रिएट किया गया, इसलिए 1778 इसमें यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं. द लीगल इश्यूज रेज्ड इन ट्रायल which started in 1778, where Bahadur Beg, who lived outside Calcutta, was subject to the to the jurisdiction of Supreme Court, and whether the law officers could be prosecuted for acts done in their judicial capacity. ये तो आप पॉइंट समझ रहे हो, 2 पॉइंट जो रेज हुए थे, ये सभी ये लूप होल्स थे मेनली. ऐसा था कि जैसे बहादुर बेग जो था, जैसे मैंने बताया था कि
जो जुरिडिक्शन थे उस टाइम पे कोर्ट्स के कहाँ तक ही थे, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, जो नॉर्मल जो जुरिडिक्शन जो एरिया का था वहां तक ही था। तो फर्स्ट कंटेंशन वाज रेज दैट कि ये एप्लीकेबल होगा कि नहीं बहादुर बेग को। देन सेकंड, लॉ ऑफिसर्स वर प्रोसिक्यूटेड फॉर एक्ट्स डन इन देयर जुडिशियल कैपेसिटी, राइट। दे वर द गवर्नमेंट सर्वेंट उस टाइम पे, अगर मान देखा जाएगा तो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, राइट। तो दे शुड बी प्रोसिक्यूटेड और नॉट, ऐसा था कि उन पे चार्जेस लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए। तो दीज वर दी टू कंटेंशंस रेज्ड। तो उस पे फिर आगे डिस्कस किया गया। ऑन द फर्स्ट इशू, द कोर्ट सेड दैट बहादुर बेग was a farmer of land revenue and he was not different from the revenue collector and therefore was directly or indirectly in the services of the company. बहादुर बेग जो थे, he was in the services, तो he was taken under the jurisdiction of the Supreme Court, तो इसका ये कहना है, therefore was directly or indirectly in the service of the company. On the second issue, the court held that although Patna Council was legally constituted court having jurisdiction to decide civil disputes between the Indians, it had no jurisdiction to delegate its function to law officers, the qazis and muftis. तो ये वाला इसमें एक पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने देखा, जो जुडिशियल कैपेसिटी में जो काजिज मुफ्तीस काम कर रहे थे, उनको इट हैड नो जुरिडिक्शन टू फंक्शन एज द डेलीगेट्स एंड लॉ ऑफिसर्स द काजिज मुफ्ती, जैसे उनको बोल दिया था कि आप लोग जाइए और वो चीज़ों जो भी प्रॉपर्टी है उनको देखिए अच्छे से, उन पे उनको सील करिए ऐसा। तो बट द सुप्रीम कोर्ट सेड इट हैड नो जुरिडिक्शन टू डेलीगेट्स इट्स फंक्शन टू द लॉ ऑफिसर्स द काजिज एंड मुफ्तीज। जैसे मैंने बोला अभी, ये सुप्रीम कोर्ट अलग आंसर दे रहा है और काउंसिल दीवानी जो थे वो अलग आंसर दे रहे थे, राइट। उन्होंने तो डायरेक्टली अपॉइंट कर दिए काजिद मुफ्तीस को, बट व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड कि नहीं, दे कैन नॉट डेलीगेट देयर फंक्शन टू द लॉ ऑफिसर्स, ऐसा था। तो दे दीज वेर द वीकनेसेस कि प्रॉपर डायरेक्शंस और प्रॉपर रेगुलेशंस और प्रॉपर जो भी वर्क फंक्शनिंग जो था, प्रॉपर प्रोसीजर्स पता ही नहीं था, इसीलिए ये सब इशू रेज हुए थे। Then, the court criticized the manner in which the Qazis and Muftis had acted for ascertaining facts. All the proceedings in the council were ex parte without any notice being given to the Begum. Ex parte, right? समझ रहे, without the ex parte means without hearing the other side also, ठीक है ना। दूसरी साइड को बिना सुन रहे ही आप ऑर्डर पास करते जा रहे हो, इसको बोलते हैं ex parte ऑर्डर। विदाउट एनी नोटिस, कोई नोटिस भी नहीं दिया जा रहा था बेगम को। नो रेगुलर ट्रायल वाज हेल्ड and witnesses has not been examined on oath, witnesses को भी examine नहीं किया था। Thus, the law officers were tried not for what they had done in the discharge of their regular functions, but for something outside thereto. The court had an undoubted jurisdiction over the company's servants. तो company servants पे properly उनका तो रोज ऐसा था कि company servants में मैंने जैसे बताया कि company servants आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, we have jurisdiction over them, ऐसा था। The Supreme Court awarded damages of rupees 3 lakhs to the widow, which was quite inappropriate. The Patna case brought to the light inherent defects in the company's judicial system, that is the Adalat and the Council, Diwani councils. Also, the case involved the question of Supreme Court jurisdiction and its relationship with the officials of the Adalats. Also, the case involved the question of Supreme Court jurisdiction एंड इट्स रिलेशनशिप्स विद द ऑफिशियल्स ऑफ द अदालत। जो रिलेशन, जैसे मैंने बोला था कि काजिद मुफ्तीज को जैसे रोल डेलीगेट कर दिया कि उन पे उनका क्या जुरिडिक्शन है कि नहीं है, तो ये सब भी इश्यूज थे, ये सब भी वीकनेसेस थे, बिकॉज देयर वाज नो प्रॉपर प्रोसीजर। अ लेसन वाज परहैप्स लर्नड व्हिच बिकेम द बेसिस ऑफ फर्दर रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कैरिड आउट लेटर। सिमिलरली धीरे धीरे आगे चल चल के द डिफेक्ट्स वेर रिमूव्ड, ऐसा था। तो द मेन एस्पेक्ट इसमें तो चलिए अडॉप्शन हो गया, इसको पैसा मिल गया, क्या था, बट मेन केस है कि जो डिफेक्ट्स पटना केस को हम किस तरह याद रखने वाले हैं, एक ही चीज से, द डिफेक्ट्स इन द लीगल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लोअर कोर्ट्स याद रखिए तो याद रहेगा ठीक से। दीवानी अगर याद करना है तो अच्छे दीवानी कर लीजिए, नहीं तो काउंसिल करना है तो काउंसिल कर लीजिए, बट सिंपल है, द डिफेक्ट्स इन दी लोअर कोर्ट्स एट द ब्रिटिश पीरियड, दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन, देयर वाज नो प्रॉपर प्रोसीजर टू बी फॉलोड, कोई गाइडलाइंस नहीं थी। तो इस तरह आप पटना केस को याद रखिएगा तो इजीली याद हो जाएगा। फैक्ट्स तो इजी हैं इसके, इतना कुछ हार्ड नहीं है। ओके, तो इतना ही साइड था सर। चलिए, हो तो गया। दूसरा भी केस है मेरे पास, कमालुद्दीन केस मैंने बनाया था आप लोगों के लिए। नहीं हो ये, इसे क्या है ना कि इम्पोर्टेंट केस लॉज को ज़्यादा टाइम लगता ही है। इसमें मेन था कि द मिस एडमिनिस्ट्रेशन, द डिफेक्ट्स इन दी लोअर कोर्ट्स एट दैट पीरियड, पटना में ये था। देन कमालुद्दीन में क्या है कि अब जो कमालुद्दीन केस में क्या हुआ, क्या था कि गाइस, जो सर्वेंट्स थे रेवेन्यू के लिए जो काम करते थे, जैसे दीवानी कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू था मेन, जो जहाँ से पैसा आता था ब्रिटिशर्स को, तो उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है कि नहीं, ऐसा था। तो ये एक इशू रेज हुआ था उस केस में कि
the persons who are acting in who are working as in capacity of collection of revenue of the Diwani, the actions can be taken or not against them. तो कमालुद्दीन केस में ये एक इशू हुआ था कि जो काम कर रहे हैं, ठीक है, एज अ रेवेन्यू कलेक्टर इन ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ सर्वेंट, तो उन पे एक्शन लिया जा सकता है कि नहीं, तो वहां पे भी एक इशू ये क्रिएट हुआ था। तो वो हम चलिए कल ही कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता हो पाएगा।